Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the storms and cyclones. Last time हम लोगों ने सिर्फ winds के बारे में पढ़ा था. Winds क्या होती हैं, what are the properties of the winds, and generally ये wind क्यों flow होती हैं. Maybe it is the reason for the uneven heating of the earth or the uneven heating of the land and water. राइट तो ये दो केसेस हम लोगों ने देखे थे जब हमें पता चला कि भाई इन रीजंस की वजह से द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज द विंड्स राइट. तो आज हम लोग देखेंगे इन्हीं विंड्स का यू कैन से अ लिटिल बिट यूज़ करके ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं राइट. तो इन्हीं विंड्स को आगे हम लोग स्टडी करें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे थंडर स्टॉर्म्स, cyclones, tornado. We are talking all about these natural phenomena today, right? These lectures are definitely going to help you in your school examinations and the Olympiad level questions, and we are going to face it after these lectures, right? So basically they will let you learn about the Olympiads also, right? So what you need to do is to study from these video lectures so that you can gain knowledge about the school examination and the Olympiads, right? So you can crack all both the examinations simultaneously, and that would be so cool, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to do is you need to write TTB07 in the search box of the Telegram app. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा जो चैनल 7th क्लास का वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपीयर हो जाएगा. You can join that channel and access all the DPPs and study material available over there along with the notifications. Right? Now see, दिस इज़ अ टीम विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज ये टीम बहुत मेहनत कर रही है कि आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके दैट इज़ फ्री फॉर एवरी वन. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दैट एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट कोई भी बच्चा इन वीडियोज़ लेक्चर्स को अगर देखता है सो ही और शी मे क्रैक दी school examination along with the Olympiad. So basically अगर आप चाहते हैं if you are like for the first time you are studying for the Olympiads or maybe for the school examination at free of cost you can watch these video lectures and you can crack the examination you wanna aim for, right? एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट. हमारे करियर को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशंस की होती है. सो बेसिकली हो सकता है आप सिर्फ एग्जामिनेशन को देखकर ना भी सोचें, फिर भी आपको नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए तो ज़रूर करना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स एंड दीज आर फ्री, सो वाई शुड नॉट, राइट. अभी देखिए इन अकॉर्डिंग्स टू दैट हम लोगों ने आपको जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको प्रोवाइड किए ही है राइट. बट इन अकॉर्डिंग्स टू दैट हम लोगों ने आपके लिए कुछ पैकेजेस भी बनाए हैं एंड टू एक्सेस दोज पैकेजेस यू कैन गो ऑन द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website you are going to get these two type of packages, full package and the test series. So full package contains all the necessary things you need to crack any examination, right? So basically whether it be the study material, recorded live classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes and the periodic test papers. So basically you are going to face all the necessary things you need to crack your examination and you are going to prepare well by it, right? So basically that is a year-long process you are going to face. So you need to do the homework, you definitely going to attempt all the quizzes, the papers, and you are going to study from the video lectures and the study material. So basically all the things are included in that, right? And if you are serious about just by testing part, then you can join the test part also. So you'll be getting the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes. These are the three most important thing in the test series. Basically you can attend them, right? And if you want to buy them you can join my course and you can write my code also, CY Live. That is you are going to get the 30% discount by using that code, right? And if you want to know more about these packages then you can call us on the number 919549041111. So you can call us on these number and all your queries will be resolved over there. So make sure that you do that, right? All right, now this is the promise time. So you should promise that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the most thing you should do. Revise daily is the necessary things you should do. All right, that is a literally important thing. Now see, this is the lecture 2, storms and cyclones. So basically we are talking about the storms and cyclones. We are going to study about those, what are those, how they are going to form and most of the reasons कहाँ पर form होते हैं ये tornadoes, cyclones, storms, these things. We are going to study that. तो basically हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: storms,
thunderstorms, tornado, cyclone. These are the 4 things we are going to study today. इनके जो precautionary measures हमें लेने चाहिए या फिर जो हम उस वक्त पॉसिबली कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ वेन एवर यू फेस सच टाइप ऑफ सिचुएशंस. ऑलराइट, सो देखिए, कैन यू सी द लाइटनिंग हियर? Alright, so basically lightning along with the storms are going to make the thunderstorms, right? So basically you can see कि thunderstorms जो होते हैं वो generally हॉट और ह्यूमिड एरियाज में बनते हैं बिकॉज उनके लिए क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नेसेसरी होता है, राइट? सो यू कैन सी थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया very frequently. So basically thunderstorms बहुत ही ज़्यादा frequently हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में जो है बनते हैं, फॉर्म होते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड का रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है. टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से, बहुत जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एयर जो है वो क्या करेगी, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी एंड इट विल बिकम लाइट, इट विल राइज एंड व्हेन इट विल राइज एंड देन अगेन इट वाज गोइंग टू बी ह्यूमिड, राइट? तो वहाँ पे जितना भी वाटर वेपर्स होगा अलॉन्ग विद दैट it will go rise and then when it get condenses it will rain. तो raining and upward winds दोनों एक साथ होती हैं and that causes the thunderstorms most importantly. Right? Now see, the rising temperature produces strong upward rising winds. जब temperature बढ़ जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, so what happens, अचानक से जो air होती है उसके temperature rise करने लगता है. Due to that सारी की सारी जो winds हैं वो upward direction में बहुत जल्दी flow करती हैं because बहुत ही ज़्यादा fastly temperature rise होने लगता है. Alright, then देखिए, these winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. अब ये जो गरम गरम हवा ऊपर जा रही हैं क्योंकि ह्यूमिड एरिया है, राइट? तो दैट मीन्स ह्यूमिडिटी इज इन द एयर, राइट? अब क्योंकि जितना भी ह्यूमिडिटी है उसको वो वाटर वेपर बना के गरम हवा उसको अपने साथ ऊपर लेकर चले जाती है. सो ऑल द वाटर जो भी है, जितना नेसेसरी वहाँ पे अमाउंट प्रेजेंट है और उस राइजिंग टेम्परेचर के साथ वो भी हवा के साथ साथ ऊपर जाता है. बट व्हेन इट गोज़ अप, वहाँ पर जाकर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो एयर है वो ठंडी हो जाती है. एट दैट टाइम वहाँ पर क्या होता है, सारी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं. फ्रीज होने का मतलब दे बिकम आइस एंड कम्स इनटू द लिक्विड स्टेट एंड देन फॉल अगेन. सो बेसिकली वहाँ पे राइजिंग विंड्स भी होती हैं जो अपवर्ड ऊपर जाती हैं और फॉलिंग वाटर भी होता है जो नीचे आ रहा होता है, राइट? तो दैट सिचुएशन can get you the thunderstorms, right? The swift movement of falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट होती है जब ये दोनों ही सिचुएशन साथ साथ हो रही होती हैं. एक तो बहुत ज़्यादा हीट अप होने वाली एयर ऊपर उठ रही होती है, साथ ही साथ जो पानी नीचे आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट मूवमेंट के साथ आता है एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर लाइटनिंग एंड साउंड होती है. दिस कॉजेज द थंडरस्टॉर्म बेसिकली, राइट? It is this event that we call a thunderstorm. So basically thunderstorm is like जब कभी भी जो hot air rise करती है and water droplets fall करती हैं simultaneously. So this causes a thunderstorm, that is the lightning and the sound, right? So you are going to get that type of situations. And it can be created in the hot and humid areas only because you need humidity for the waterfall, right? And definitely for hot thing because that is how going to increase the temperature of the air. Right? So that is the most two important things you need to learn about the thunderstorm. The areas are the hot and humid areas and in that areas generally thunderstorms form, right? Now let's look up to the precautions what you can take about the thunderstorms whenever you're going to face that. ठीक है, तो सबसे पहला step you can take is that do not take shelter under the isolated tree. एक अकेला isolated tree, जैसे let's say पूरा पार्क है ना, और उस पूरे पार्क में सिर्फ एक ट्री वहाँ पर प्लांट है, ठीक है? इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गो अंडर दैट ट्री बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि लाइटनिंग उस ट्री पे स्ट्राइक करे, राइट? दैट इज़ वाई यू शुड नॉट टेक शेल्टर इनसाइड द अंडर द आइसोलेटेड ट्री. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. Right? अब आप अगर जैसे फॉरेस्ट में अगर जैसे बहुत सारा प्लेन एरिया है, इकलौता कोई पेड़ अगर वहाँ पर है तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडर इट, राइट? एंड देन अगर ऐसा पॉसिबल है कि लेट्स से यू आर इन अ फॉरेस्ट
and so you should take the shelter under the small trees and do not lie on the ground. That is the most important thing. ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, बिकॉज देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मैटर के थ्रू जाती है. मैटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है. दैट इज़ द रीज़न कि आपको अम्ब्रेला, वो भी मेटालिक एंड का अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो मेटालिक एंड से आप तक पहुंच सकती है एंड आपको स्ट्राइक कर सकती है. राइट, दैट इज़ वाई आपको ऐसा अम्ब्रेलाज यूज़ करने हैं जिनमें इंस्टेड ऑफ मेटल किसी और चीज़ का, किसी इंसुलेटर का आपको हैंडल मिले. राइट, यू शुड नॉट गोइंग टू टेक सच टाइप ऑफ अम्ब्रेलाज. नंबर थर्ड, व्हाट यू कैन डू इज डू नॉट सिट नियर अ विंडो. विंडो के पास नहीं पहुंचना है, नहीं बैठना है. इट कैन टेक लाइक विंडो से जब कभी भी कोई भी हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू स्ट्राइक बाय दैट. राइट, open garages, storage sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. Make sure that you are not near any conductor. क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है. राइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी गोज थ्रू दी कंडक्टर. सो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पाथ मिलेगा वो वहीं जाएगी. राइट, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न. अगर उसको एक कंडक्टर मिल जाता है तो वो वहीं चल जाती है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अराउंड एनी कंडक्टर एंड यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कंडक्टर. ठीक है, वेदर इट इज द मेटल शेड्स एंड गराजेस एंड ऑल, डू नॉट डू दैट. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, a car or a bus is a safe place to take shelter. Now see how a car and a bus is the safe place. देखो कैसे, जब कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, इफ़ यू आर इनसाइड अ कार, तो क्या होगा, जो भी लाइटनिंग आएगी वो इस कार की मेटालिक बॉडी से होते हुए इट विल गो इनटू द ग्राउंड. ऑलराइट, इसे फैराडेज केज कहते हैं, विच इज़ हाईली प्रोटेक्टिव. सो इफ़ यू आर इनसाइड द कार यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डैमेज, बट इफ़ यू आर लाइक आउटसाइड द कार एंड यू आर गोइंग टू टच द मेटालिक पार्ट ऑफ द कार, then you are going to be struck by the lightning. So you need to make sure if that happens, whenever you should be inside the car, right, or inside a bus, you should be like inside that much of a vehicle, not bikes and all. वो तो बिल्कुल भी safe नहीं होता है. right. If you are in water, get out and go inside a building, because water भी एक conductor है. We know that normal water, tap water is a conductor, right? So basically you should not be inside the water so that if lightning strikes, it can strike you. So you need to better go into the building, right? अब चले आगे चलते हैं कि किस तरीके से थंडर स्टॉर्म अब साइक्लोन बनता है, कैसे बनता है. ठीक है, तो दिस इज द पिक्चर विच इज गोइंग टू शो यू हाउ सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स. सो देखिए, वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एंड गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड. सो वी हैव लर्न दैट थिंग, राइट. सो व्हाटएवर क्या जो पानी है वो क्या करता है, वो लिक्विड स्टेट में जब होता है तो वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है इट चेंजेस इट्स स्टेट. राइट, एक उसका टेम्परेचर होने पर वो क्या करता है, अपना स्टेट को चेंज कर लेता है. सो लिक्विड स्टेट अगर हीट लेता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में. राइट, तो इट बिकम्स इनटू द वेपर स्टेट. अब जब लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में चले जाता है, सो व्हाट हैपन्स कि वो क्या करता है, वाटर जो भी ह्यूमिड, यू कैन से ह्यूमिडिटी है या फिर जो भी ह्यूमिड क्लाइमेट है, व्हाट हैपन्स देन, क्या हो रहा होता है कि सारा का सारा जो ह्यूमिडिटी है वो क्या कर रहा होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. हीट को एब्जॉर्ब करता है, हॉट टेम्परेचर है तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद व्हाट हैपन्स, इट चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है. एंड जब क्या हो रहा होता है, वेपर स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश करता है तो वो गिव आउट द हीट, क्योंकि वेपर्स के पास बहुत ज़्यादा हीट होती है. सो इट गिव्स आउट द हीट एंड देन इट कम्स इनटू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. क्लाउड्स बनने के पहले जो पानी है वो आसपास का टेम्परेचर का जो बढ़ रहा है, द राइजिंग टेम्परेचर, उसको एब्जॉर्ब करता है एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द वेपर स्टेट. राइट, तो वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसका फेज स्टेट जो है चेंज हो जाता है. ठीक है, और फिर क्या करता है, बिकॉज इट हैज़ हीट नाउ तो इट राइजेज अप. ठीक है, व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. तो वो क्या करेगा, नीचे से एटमॉस्फेयर से हीट लेकर पानी जो है वेपर में चेंज हो जाएगा, इट विल गो अप. राइट, ऊपर जाने के बाद वो क्या करेगा, वापस लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश करेगा एंड इट विल रिलीज द हीट. तो क्या होगा, ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट रिलीज कर देता है. राइट,
द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म्स द एयर अराउंड. अब जो हीट वहाँ पर रिलीज हो जाती है वो क्या करती है, एयर को गर्म कर देती है, बिकॉज डेफिनेटली टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लाइक फॉरवर्डेड टू एन अनदर थिंग, राइट. अब अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ने क्या किया है, टेम्परेचर को रिलीज कर दिया है, तो दैट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी ऑब्टेन और दी यू कैन से एब्जॉर्ब बाय द एयर. सो आसपास की एयर फिर उससे गर्म हो जाती है, राइट. एंड देन द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन द प्रेशर. अब उससे क्या होगा, एयर प्रेशर जो है राइज होने लगेगा, ऊपर एयर प्रेशर राइज होने लगेगा, बिकॉज एयर विल राइज, वार्म हो चुकी है अब वो, बिकॉज सो इट विल राइज. एंड जो नीचे के एरियाज हैं वहाँ पर अब प्रेशर काफ़ी कम होगा. ये चीज़ अगर बहुत फास्टली होती है तो फिर बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर डिफरेंस आता है. एंड अगर जल्दी जल्दी प्रेशर डिफरेंस आएगा तो दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी हवाएं बहने लगेंगी, बिकॉज वी नो दैट जितना ज़्यादा जल्दी प्रेशर डिक्रीज होता है या प्रेशर चेंज होता है उतनी ही तेज़ी से विंड चलती हैं, राइट. वी नो दैट उनका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है. एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन हियर. यहाँ पे जल्दी जल्दी ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ड्यू टू विच जो विंड्स होती है बहुत तेज़ी से बहने लगती हैं. मोर एयर रशेस टू दी सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. यहीं पर ही, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है, पानी फॉल कर रहा है, सारी एयर जल्दी जल्दी राइज कर रही है, द हाई टेम्परेचर एयर, राइट. इन दैट स्विफ्ट मूवमेंट स्टॉर्म्स अकर, राइट. उसी को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. बट ऐसा होते होते दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन सी, हॉट एयर इस तरीके से राइज होते रहती है, होते रहती है, होते रहती है. इट इज गोइंग लाइक इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. और सिंकिंग एयर इज गोइंग लाइक दिस, तो वहाँ पे पानी भी होता है, राइट. एंड देन पूरी जो हवा है वो ऊपर जा रही है, हॉट राइजिंग एयर. सो बेसिकली इन दैट केस ज़्यादा से ज़्यादा हवा आई पर चले जाती है. व्हाट इज दैट, द सेंटर पार्ट, ठीक है. सेंटर ऑफ द स्टॉर्म वी कैन से इज द आई, ठीक है. बहुत ज़्यादातर यू कैन से एयर है वो सेंटर पे जाती है. क्यों, बिकॉज इट इज़ गोइंग लाइक दिस. ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलते रहता है, राइट. अब देखो, द काम एंड क्लियर एरिया एट द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन. दिस इज द मेन थिंग. जब ये ऐसे गोल गोल घूमने लगता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे जाने लगता है, एट दैट टाइम जो उसका सेंटर होता है, दिस सेंटर इज एक्चुअली इज वेरी काम एरिया एंड दिस इज नोन एज द आई. बहुत शांति रहती है, राइट. दिस इज टेकन एज द आई ऑफ द साइक्लोन हियर, राइट. This cycle is repeated, the chain of the even ends with the formation of a very high speed winds revolving around it, because बहुत ज़्यादा जल्दी pressure difference होता है तो wind की speed और भी ज़्यादा increase होते जाती है. And they are rotating at a very high speed, बहुत ज़्यादा speed में rotate करते हैं, and they are like moving in the forward direction also. So basically वो एक ही जगह पे cyclone form नहीं होता है, rotate तो करती है पूरी हवा, लेकिन उस rotation के साथ साथ they are also moving forward. So basically वो एक ही जगह नहीं रहते हैं, दे आर मूविंग, पूरा का पूरा साइक्लोन एक साथ मूव करता है एंड दे स्वाइप्ड अप द वेरी हाई एरिया. इट इज द वेदर कंडीशन वी कॉल अ साइक्लोन, राइट. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट. जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला साइक्लोन होता है. विंड डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन. सो बेसिकली जो थंडर स्टॉर्म है वही साइक्लोन का रूप ले लेता है, बट एट अ वेरी 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 हाई स्पीड. अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से यूज होता है. जैसे हरिकेन बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंड फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून बोलते हैं. तो बेसिकली अगर आपने कभी टाइफून सुना हो या फिर आपने कभी हरिकेन सुना हो, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दीज टर्म, दीज आर जस्ट द अदर नेम ऑफ द साइक्लोन्स ऑल्सो, राइट. अब देखते हैं जो डिस्ट्रक्शन साइक्लोन से कॉज होते हैं, डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्शन, राइट. तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन तो होता है एंड this is the main reason why we afraid of these cyclones, because they cause very much vast destructions up with them, right. So देखिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं. कैसे? by the strong winds also. सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. strong winds push water towards the shore even if the storm is 100 of kilometers away. These are the first indication of an approaching cyclone. Whenever that happens in the sea,
सो बेसिकली एट दैट मोमेंट जब वो बन रहा होता है, जब साइक्लोन बन रहा होता है एट दैट मोमेंट, तो वो भले ही बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स अवे सी में बन रहा हो, फिर भी वो सी शोर में बहुत सारा अमाउंट ऑफ पानी एज अ यू कैन से एज अ वेव सेंड आउट करता है. तो अगर कैसे लेट्स से इफ़ यू आर एट अ सी शोर राइट एंड यू आर गोइंग टू गेट लाइक बहुत सारा पानी सी की तरफ, सी शोर की तरफ आ रहा है राइट. सो यू शुड गेट you should know or you should get a hint that a cyclone may be approaching, right? So that is the first step. Even ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी पानी की वॉल सी शोर की तरफ आ रही है. Literally that type of wall you can get by these type of cyclones, right? The water waves produced by the winds are so powerful that a person cannot overcome them. Because of those high moving winds, आसपास का जो पानी है सी का, उसमें क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है, बिकॉज दे आर सो मच विद द हाई स्पीड राइट. तो वो क्या करते हैं, अपने साथ साथ पानी को भी लेकर चलते हैं, एंड दैट इज हाउ दैट वाटर वॉल फॉर्म्स. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. जैसे ही लो प्रेशर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है. ठीक है. द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स हाई वाटर आपको वॉल मिल सकती है. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर. एंड सोचिए 3 to 12 meters high water wall is coming towards you and it will go splash on your face like that and it cause so much powerful right. तो बहुत ज़्यादा powerful होता है, बहुत ज़्यादा destructive होता है ये. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. So basically, life और property इनका नुकसान तो होता ही होता है, प्लस नेक्स्ट टाइम के लिए जो सॉइल है उसको भी इनफर्टाइल कर देता है. सो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ वेजिटेशन ओवर देयर, ट्रीज एंड क्रॉप्स, वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, एंड दोज soil are not able to produce them also right. तो that is the main destructive part जो कि हमें you can say बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है about these cyclones right. देखिए कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और बहुत सारा फ्लड भी आ जाता है बिकॉज बहुत सारा पानी लो एरियाज में आ जाता है राइट. अब उस पानी को वापस सी तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, ड्यू टू दैट फ्लड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. सो ये साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स एंड देन फ्लड ऑल्सो. सो दिस इज सो मच डिस्ट्रक्टिव थिंग. High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property along with that also, right. तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा property, life, पूरा communication system and like everything, poles वापस लगाने पड़ेंगे, wires connection देना पड़ेगा, no electricity, nothing जो है वहाँ पर होता है whenever such type of things occurs. As you can see from this photo, this is totally a destructive part, right? All right, so let's talk about a tornado. What is a tornado? Can you see this picture here? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा strong winds हैं, और let's say like a funnel है ना, एक बहुत ही ज़्यादा funnel के लिए भी है, ठीक है. तो और ये पूरा तरीके से इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक wind column है ना. तो देखिए, a rotating column of high speed winds that appears as a dark funnel shaped cloud reaching from ground to the sky is called a tornado. So basically यही जो winds होती हैं और funnel shape में होती हैं, बहुत high speed में होती हैं, और वो भी कैसे, सोचिए, from the ground to the sky, like there is a connection path, right? इस तरीके से जब कभी भी आपको फॉर्मेशन दिखे तो दैट इज व्हाट इज नोन एज टॉर्नेडो. ठीक है. अ टॉर्नेडो मे फॉर्म विद इन अ साइक्लोन. कभी ये साइक्लोन के अंदर भी बन सकता है राइट, और ये कभी अकेला भी बन सकता है. अ टॉर्नेडो फॉर्म्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर इन द आई ऑफ द साइक्लोन दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर हियर. Objects near the base of a tornado such as cars, dust, debris and even houses are sucked into its funnel and thrown out at the top. So basically इस funnel में क्या होता है, नीचे जो कुछ भी है उस सभी को ये क्या करता है, ये funnel suck कर लेता है, और जैसे ये funnel suck कर लेता है उन सभी चीज़ों को ऊपर ले जाता है बिकॉज देयर इज़ नो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर रहता है राइट. तो वो सारी चीज़ें से ऊपर जाती है और उनको थ्रोन आउट कर देता है. थ्रोन आउट करने पे वो सारी चीज़ें दूर 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 जाके बिखर जाती हैं राइट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, लेकिन ये साइक्लोन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है. More than 1,000 tornadoes occur every year across the world.
Most occur in the United States. Tornadoes occur regularly in the regions around the Atlantic Ocean. So basically ये जो कुछ regions हैं जो कि बहुत ज़्यादा affected region है by these tornadoes. Weak tornadoes travel with wind speeds of 50 to 60 km per hour, while a violent tornado can travel at a speed of about 40 km per hour. So it has a speed, it does not stay at a place, right? Such type of tornadoes do not stay at a place, they move around. और जो weak tornadoes होते हैं, जो ज़्यादा destructions नहीं करते हैं, उसमें कितना स्पीड होता है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर. बट द टॉर्नेडो विच इज़ एट हाई स्पीड बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है, डिस्ट्रक्टिव पार्ट बहुत हो जाता है उसका. सो दैट इज ट्रेवल्स अबाउट दी 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे ट्रेवल करता है. दिस इज सो ग्रेट, राइट? A tornado is a natural disaster but not as a dangerous as a cyclone. So it is a natural disaster, we know that, and destruction तो इसमें भी होता है but उतना लेवल का नहीं होता है जितना साइक्लोन्स में होता है, right? Alright, so now see the effective safety measures against cyclones. How you can protect yourself from the cyclones? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी वार्निंग साइन अगर मिल रहा है, इफ़ यू आर नियर द सी शोर, सो ऑलवेज टेक अ लुक एट दी जो भी कम्युनिकेशंस हो रहे होते हैं उस वक्त, जो भी यू कैन से फोरकास्टिंग चल रही होती है या फिर जो न्यूज़ में बताया जाता है, सो ऑलवेज टेक दैट सीरियसली. ऐसा नहीं है कि सब मजाक में लेकर फिर भी आप सी शोर पे चले जाते हैं, राइट? So you need to take a look at the cyclone forecast and warning service. You need to make sure that you consider that. Rapid communication of warnings to the government agencies, the ports, fishermen and ships to the general public. If you do that, इस तरीके का अवेयरनेस अगर आप रखते हैं और अगर इस तरीके कोई भी कम्युनिकेशन को आप सीरियस लेते हैं तो दैट मीन्स द थिंग कि आप खुद को भी सेव कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी सेव कर पाएंगे, राइट? तो यू नीड टू मेक श्योर कि इस तरीके की कम्युनिकेशन को आप सुनते रहे, right? Construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangements for people moving for safer places. This can be done, but this is the thing which should be done by the agencies, right? तो it like आप इस तरीके के साइक्लोन शेल्टर्स को बनवाने में हेल्प करवा सकते हैं. कैसे ऐसे हेल्प करवा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे हेल्पफुल होता है जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन हो, मतलब वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, राइट? जैसे द कोस्टल एरियाज, राइट? तो वहाँ पर साइक्लोन शेल्टर्स वुड बी सो मच बेनिफिशियल, राइट? Now see, safety measures what you can take at the time of the cyclone. We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radios and newspaper. That is the main thing. You should not even उनको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करना है that you are ignoring it, right? कोई भी अगर आपको ऐसा मिलता है न्यूज़, कोई वार्निंग अगर आपको मिलती है तो you need to make sure and you need to consider it. खुद भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, right? We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places. Avoid driving on road through standing water such as floods may have damaged the roads, and keep ready the phone numbers of all the emergency services like police, fire brigade and medical centers. ये है क्या चीज़ें जो आप सभी को पता होनी चाहिए. आप सभी को सारे इमरजेंसी नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, मेनली पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, इन तीनों का तो पता ही होना चाहिए, राइट? ये आपको नेसेसरी ध्यान रखना है भाई. कभी भी आपको क्या करना है, फ्लड के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहा है. लेट्स से यू आर नॉट गोइंग टू, आपको इतना ज़्यादा पानी वहाँ अगर है कि भाई आप रोड नहीं देख पा रहे हैं तो यू शुड नॉट ड्राइव थ्रू दैट, क्योंकि हो सकता है रोड खराब हो, राइट? तो मे बी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर कुछ भी गड्ढा या कुछ भी अलग वहाँ होगा तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, राइट? तो यू नीड टू मेक श्योर, ठीक है? आपको ये मेक श्योर करना है. सो नोट दिस डाउन. ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को नोट कीजिए.
ऑलराइट, सभी ने नोट कर लिया। चलो अभी हम देखते हैं कुछ और प्रिकॉशन जो कि हम साइक्लोन के टाइम ले सकते हैं। राइट, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर emergency. So basically what you need to do is if you are in that cyclone prone areas, तो आपको पहले से ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। एंड इवन ऐसा हो गया है कि आप नहीं स्टोर कर पा रहे हैं तो भी किसी भी कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक ना करें, इससे आपकी ही हेल्थ को खतरा हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ द प्रिकॉशन यू शुड टेक अबाउट इट, यू शुड थिंक अबाउट इट। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, अगर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है साइक्लोन्स की वजह से बहुत सारे पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो बड़े पोल्स और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो कि कट ऑफ करवा दी जाती हैं। सो उस टाइम पर भी आपको किसी भी वे में छूना नहीं है उन्हें। ठीक है, इवन कोई छू भी रहा हो तो उसको भी मना करना है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है एंड इट कैन कॉज यू वेरी मच डिस्ट्रक्शन। राइट, सो यू नीड टू डू नॉट टच दी ऑल द थिंग्स विद द वेट थिंग, बिकॉज वहाँ पे उस वक्त पानी का बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन फ्लड की वजह से भी। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दैट। दूसरे लोगों को भी रोकना है आपको इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के कॉम्बिनेशन से तो बहुत दूर रहना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ द फन, तो कई लोग सिर्फ उन जो वार्निंग साइंस मिल रहे होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस आप अपने फन के लिए बाहर जाते हैं एंड इट कैन कॉज यू वेरी मच डिस्ट्रक्शन। सो यू नीड टू मेक श्योर इफ यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ warning sign that a cyclone may appear or cyclone is coming, so you need to be like consider those things. You should be the very much you can say responsible one and then you should not go out. Right, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम पर करते हैं कि भाई अपने कुछ सामान जो है वो लेकर आना चाहते हैं, छूट जाते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आप ऐसी अनड्यू डिमांड्स नहीं करेंगे जो भी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट कैन बी टेकन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड टेक अबाउट योर थिंग्स। राइट, cooperate and help your neighbors and friends, that is the foremost thing you should do. Right, आपको सभी को ऐसा नहीं करना है कि इसको नहीं बचाएंगे उसको नहीं बचाएंगे, but you should definitely be responsible and you should cooperate with your friends and all. Right, that is the a good student thing. Right, आपको ये तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए and you should do it. Right, देखिए अभी जो हम लोग आजकल देखते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, आप बहुत जल्दी से मैसेज देकर बता सकते हैं। सो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। राइट, पहले के ज़माने में जब साइक्लोन आता था तो लोगों को पता ही नहीं चलता था और उसकी वजह से कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं ले पाते थे। लोग दूर नहीं जा पाते थे उस जगह को छोड़ के कि भाई दे आर लाइक गोइंग आउट साइक्लोन आने के पहले। राइट, तो ये मूव नहीं हो पाता था, शिफ्टिंग नहीं हो पाती थी। बट अभी क्या होता है कि अभी आपको बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 48 आवर्स तक आपको वार्निंग साइन मिल जाता है दैट अ साइक्लोन मे अपीयर। तो यू हैव लाइक 48 आवर्स टू शिफ्ट फ्रॉम योर हाउस टू अनदर सेफ प्लेस सो दैट यू कैन बी सेफ। राइट, तो ये चीज़ें आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसी की वजह से वी आर लाइक सेफ हियर। राइट, एंड कई बार ऐसा होता है इवन जब कभी भी साइक्लोन बन रहा होता है लाइक दे आर वेरी श्योर, जब ऐसे जो सैटेलाइट्स की वजह से एंड जो फॉरकास्ट होते हैं तो वहाँ पर जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आता है दैट अ साइक्लोन इज अप्रोचिंग, सो वो ऐसा न्यूज़ आपको 24 आवर्स पहले मिल जाता है। राइट, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से आप खुद को सेव कर पाते हैं। सो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हेयर ऑल्सो विच इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टे एक्टिव, you stay aware of these situations if you are in a cyclone prone area. Right, that should be your responsibility here. ठीक है, बहुत सारी even you can say the message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is near at the coast. हर एक घंटे में और हर आधे घंटे में हमेशा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो आधे घंटे में कहाँ तक पहुँच गया ऐसे बताते हैं ताकि आप अपने सारे सेफ्टी मेजर्स ले सकें और खुद को बचा सकें। एंड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स एंड या वी आर वेरी यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स। राइट,
सो हम सभी, इवन द ऑल द पीपल ऑन द अर्थ, राइट, दे ऑल डू इट, एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे से काम करती हैं इसको जो है बताने के लिए, इंफॉर्मेशन को देने के लिए, हेल्प करने के लिए, राइट। बट उसके अलावा भी हमें भी अवेयर होना की बहुत ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई इसी वजह से आपका ये जो चैप्टर है साइक्लोन्स वाला, एंड इसको आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, सो दैट यू शुड नो अबाउट दी सिचुएशंस एंड यू शुड नॉट इग्नोर दी वार्निंग साइंस, राइट। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इग्नोर ऑल द साइंस, राइट। यू शुड बी द रिस्पॉन्सिबल वन, एंड आपको भी बनना है, एंड आपको अपने दूसरों को भी बताना है, राइट। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, लेट्स इट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो देखते हैं, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव लो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एंड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द निडल ऑफ द क्लॉक, राइट, दैट इज अपोजिट। तो देखो जिस डायरेक्शन में जो निडल्स होती हैं क्लॉक की, वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट करती हैं, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसका अपोजिट डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही लो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, एंड वो क्या करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। When the winds of a tropical cyclone are less than 38 meter per hour, it is called a tropical depression. उसमें सोचो कितना ज़्यादा कम है, राइट। कभी देखिए 38 मीटर पर आवर, दिस इज सो मच लेस स्पीड, ये बहुत छोटी स्पीड है, राइट, एंड दैट इज वाई दीज आर नोन एज द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओनली। When the winds reach between 39 to 73 meter per hour, इट इज़ क्लासिफाइड एज ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तब उसे स्टॉर्म कहते हैं जब उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो उसका स्पीड अगर 39 से 73 मीटर पर आवर हो जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल देते हैं। However, when the wind exceeds 74 meter per hour, it is classified as a hurricane. तो इसके भी कुछ steps होते हैं depending on the speed, right? तो अगर wind की जैसी speed होगी, अगर बहुत ही कम speed है तो वो सिर्फ एक tropical depression की तरीके से लिया जाता है। फिर उसकी speed अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, storm बन जाता है, tropical storm. And then it terms, अगर उसकी बहुत ज़्यादा speed हो गई है, that is 74 मीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है, then we call it what, a cyclone and a hurricane, right? तो यहाँ पर इसके भी कुछ terms होते हैं depending on the wind speed, right? जितनी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगी wind speed, according to that we take that as the cyclone. process है ये एक तरीके से बनने का cyclone, right? Next देखो, the term hurricane is derived from Taino, a Native American word which means evil spirit of the wind. That means wind which are in the evil spirit and like they are so much destructive. ये उन्होंने इसलिए इसका नाम हरिकेन दिया है, राइट। लेकिन हरिकेन से ताइनो मिल नहीं रहा है। The eye wall experiences the most terrible hurricanes with extremely heavy rains. This place is the ring of clouds and thunderstorms occur around the eye. That is the most amazing fact, right? Because देखो eye wall जो है सबसे ज़्यादा terrible hurricanes को वो एक्सपीरियंस करता है, राइट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। दिस प्लेस इज द रिंग ऑफ क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म अकर अराउंड द आई। आई के अराउंड ही बहुत सारे थंडरस्टॉर्म्स अकर होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट द टेरिबल हंडर, इसने हरिकेन्स को ऐसे फेस किया हुआ है, राइट। Planet Jupiter has a hurricane which appears as a red dot in it, spinning since 300 years. This hurricane is bigger than the Earth itself. Oh my God. तो सी प्लैनेट जुपिटर, आप लोगों ने जुपिटर की फ़ोटो देखी अभी तक? सो इफ़ यू हैवंट, सो मेक श्योर कि नासा जिसने जो पिक्चर्स अवेलेबल की हैं आप उनको देखें, आपको वहाँ पर सचमुच में एक रेड स्पॉट दिखेगा, राइट। वो रेड स्पॉट इज़ द हरिकेन, वो जो कि 300 ईयर्स से रोटेट कर रहा है, मीन्स दैट हरिकेन इज स्टिल देयर 300 years, for about 300 years, and that is bigger than the whole earth. That is so much amazing thing, right? So basically these are the facts you should know about it and you should definitely add up to your knowledge. ठीक है, इन सबको आप अपनी नॉलेज में ऐड ऑन कर लो।
ऑलराइट, तो देखिए ये जो चैप्टर हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर, एंड देन उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर. सो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है. पहले रिवीजन एंड देन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन. सो देन वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस चैप्टर, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर, राइट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. So it would be so cool, right? So make sure that you stay connected with us, right? Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.